बच्चों, आज हमारा अगला वीडियो है। तो इसमें हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल आइए देखेंगे। फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। इन दिस गिवन सीक्वेंस वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। 4, 7, 10, 13 ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಎ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಮತ್ತು ಟಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೇಣಿಯು 4, 7, 10, 13 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಅಂದರೆ A1 ಅಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ A1 ಅಥವಾ ಎ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी. सो फर्स्ट टर्म तो हमारा ए है, A1, इसको हम ए भी बोलते हैं. तो ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म. अब हम डी कैसे फाइंड आउट करेंगे? डी फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1. तो A2 क्या है? 7 है, माइनस A1 क्या है? 4 है. तो 7 में से जब हम लोग 4 को निकालते हैं तो हमें मिलता है 3. तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 4 और D जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है इज इक्वल टू 3. तो 4, 7, 10, 13 ಮೊದಲನೇ ಪದ A1 ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ, ಎ ಅಂತ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದನೇ ಪದ ಎ ಬೆಲೆ ಏನಾಯಿತು? 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪದ 4, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಅಂತೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಯಿತು, ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನೇ ಪದವನ್ನು ಕಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿ इज इक्वल टू A2 माइनस A1. डी की वैल्यू यहाँ है 7 और A2 की वैल्यू यहाँ है 7 और A1 की वैल्यू यहाँ पे है 4. तो 7 माइनस 4 हमको मिलेगा 3. तो ये है हमारे डी की वैल्यू. तो ए और डी, ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.1 ಅಭ್ಯಾಸ 1.1ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. तो हमारा अगला एग्जाम्पल है फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2 and -3/2. राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D. तो इसमें इस एग्जाम्पल में हमने A और D को फाइंड आउट करना है. तो ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ 4, 7, 10 ಅಂತ ಶ್ರೇಣಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರೇಣಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. नॉर्मल जिस तरह से हमको लाइक 4, 7, 10, 13 करके जो हमें AP दिया जाता था, उस तरह का ये एग्जाम्पल नहीं है. ये एग्जाम्पल में फ्रैक्शन का फॉर्म आ चुका है. तो हमारी ये जो सीक्वेंस है ये है 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2. तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है तो उसको हम लोग A बोलते हैं. तो हमारा A हो गया 3/2. तो इन्होंने यहाँ पे A पूछा है, हमने A को फाइंड आउट किया. ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ 3/2 ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಸೊ ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪದವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ಇದು ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?
ಸೊ ಎರಡನೇ ಪದ ಏನಿದೆ 1/2 1/2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಎರಡನೇ ಪದ ಒಂದನೇ ಪದ ಏನಿದೆ 3/2. ಸೊ 1/2 ಮೈನಸ್ 3/2 ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಛೇದ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸಮನಾದ ಛೇದವನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ डिनोमिनेटर्स आर सेम. व्हेन वी हैव सेम डिनोमिनेटर्स हम इसको कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम नहीं निकालेंगे इसका, क्योंकि हमारे यहाँ डिनोमिनेटर सेम है. तो इसको एज इट इज़ ही हम लिखेंगे, 2 का 2 ही लिखेंगे. अब 1 माइनस 3. तो 1 में से छोटा नंबर है 1. ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ -1 जो है वो स्मॉल नंबर है. स्मॉल नंबर में से जब हम ग्रेटर नंबर को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस मिलता है. सो -2 ये जो है 2 ऐसे रहेगा. इसका आंसर है -2/2. अगर हम इसको अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. 2 1 ज़ा तो इसका आंसर आ गया -1/1. तो D को हम लिखेंगे -1. तो हमारी D की वैल्यू हो गई -1. ठीक है. सो D की वैल्यू हमें -1 मिली और ऊपर का जो A है वो हमें मिला 3/2. तो जो टर्म्स इन्होंने हमें पूछे थे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, वो हमने फाइंड ಔಟ್ कर लिया है. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಂದರೆ, ಅದು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ. ಸೊ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. एक्सरसाइज अभ्यास 1.1 ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಥರ एग्जाम्पल्सನ್ನು ನೋಡಿ बिड़सಬಹುದು. ओके. तो थर्ड एग्जाम्पल में है, आपको कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ಮೊದಲನೇ ಪದ A, मतलब फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2. फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है. तो अब इसका जो है आप AP लिखो. तो कैसे लिख पाएंगे हम लोग? तो ऑलरेडी हमें पता है कि फर्स्ट टर्म 3 है, तो फर्स्ट टर्म को हम 3 लिखेंगे. फिर इस 3 में जो है हम लोग 2 को ऐड करेंगे, मतलब अगला टर्म 3 में जो है 2 को ऐड करेंगे तो हमें अगला टर्म मिलेगा. सो ये हो गया 3 और अगला टर्म हो गया 3 + 2 5. फिर इसमें हम 2 को ऐड करेंगे, वो होगा 7. फिर इसमें हम 2 को ऐड करेंगे, वो होगा 9. तो ये बन गया हमारा AP. ठीक है. जब आपको फर्स्ट टर्म ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ D ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೊದಲು 4 ಪದಗಳು A1 A2 A3 ಮತ್ತು A4 ಮೊದಲು 4 ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದನೇ ಪದ ಏನಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪದವು ಒಂದನೇ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು 3 ಆಗಿದೆ. ಸೊ A2 ಅಂದರೆ ಈ 3ರಲ್ಲಿ ನಾವು D ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸೊ 3 + 2 5. ಈ 5ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಅದು 7 ಆಗುತ್ತೆ. A3 ಮತ್ತು A4 ನಮಗೆ ಬೇಕು ಆಯ್ತಾಗ ನಾವು A3ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ D ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ +2 ಮಾಡಿದಾಗ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಆಮೇಲೆ D ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲು ಒಂದನೇ ಪದ, ಎರಡನೇ ಪದ, ಮೊದಲ 4 ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ 1.1 ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಬಾಡಿಗೆ, ಕಾರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿ 15 ಆಗಿದ್ದು ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿ 8ರಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ?
ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. So for English medium students, we have exercise 1.1. So let us see what the question is. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? So these are the situations given. In these situations we should find out whether this makes an AP. तो ये situations हमें दिए गए हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये सारी चीज़ें AP में आती हैं क्या नहीं. So first question है the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. तो यहाँ पे ये लोग हमें क्या बता रहे हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर में जब वो टैक्सी में जाते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर में द फेयर इज ₹15 फर्स्ट किलोमीटर में. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर जब वो कवर करते हैं एक्स्ट्रा तो तब उन्हें ₹8 एक्स्ट्रा देना पड़ता है. ठीक है, जब वो फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो उन्हें ₹15 देने ही देने हैं. फर्स्ट किलोमीटर के ₹15 के साथ जब वो आगे की किलोमीटर तय करेंगे, लाइक फर्स्ट किलोमीटर वो टैक्सी से कवर किए तो वो ₹15 दिए, और आगे जब वो सेकेंड किलोमीटर कवर करेंगे तो इस ₹15 के साथ उन्हें ₹8 हर 1 किलोमीटर में एक्स्ट्रा देना होगा. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ₹15 ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ನಂತರದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ₹8 ಅಂತೆ एक्स्ट्रा ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो कार जो होती है, देखिए ना आपने कार, तो कार ऐसी होती है. तो कार में जब आप बैठे हो और फर्स्ट किलोमीटर आपने तय किया तो उसका रेंट होगा ₹15. ठीक है, जैसे ही आगे आप उसमें नेक्स्ट किलोमीटर कवर करोगे तो इस ₹15 में आपने क्या देना है. इस ₹15 में आपके बन जाएंगे 8, तो 15 और 8 बन गए हमारे 23. ठीक है, इस 15 में नेक्स्ट ₹8 ऐड करने से होगा 23. ठीक है, ಮೊದಲು ಕಿಲೋಮೀಟರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ₹15 ಕೊಡಬೇಕು. ತದನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ₹8 ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2ನೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ₹23 ಆಯಿತು. 3ನೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ 15ರಲ್ಲಿ ನಾವು 8ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ 23ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 8ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3ನೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 31 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ 31ರಲ್ಲಿ ₹8 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 39 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 15, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು A1, A2, A3 ಮತ್ತು ಇದು A4. ओके, तो इस तरह से अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे हम 15 और इसमें 15 + 8 लिखेंगे. तो ये हमारा है A, ये हमारा A1, 15 जो है A1 में हमने क्या ऐड कर रहे हैं, 8 जो है हमारा D है. तो अगर हम इसको A लें तो ये होगा A + D. अब यहाँ पर क्या होगा, 15 में हमने क्या ऐड किया है. ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग गेस कर रहे हैं. 15 में हमने कितने रुपए ऐड किए हैं, यहाँ पर हमने 15 में ₹8 ऐड किए, ₹8. तो यहाँ पे हमने 15 में 2 बार एक 8 और एक 8 सब मिला के 16 हो जाएगा. फिर नेक्स्ट हमारे 15 में कितने ऐड करेंगे हम, 24. मतलब 8 फर्स्ट किलोमीटर के, नेक्स्ट किलोमीटर का 8 × 2 = 16, नेक्स्ट किलोमीटर का 8 × 3 = 24. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. फर्स्ट टर्म हमारा होगा A, नेक्स्ट टर्म हमारा होगा A + D, नेक्स्ट होगा A + 2D, नेक्स्ट होगा A + 3D. तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, मैं आपको समझाती हूँ. ये देखिए, हमारा 15 है, फिर 15 + 8 है, फिर 15 + 16 है, फिर 15 + 24. ओके,
तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि फर्स्ट टर्म को हम A1 भी लिखते हैं और सिर्फ A भी बोल सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट टर्म को A डिनोट किया है। अब हमारा सेकेंड टर्म यानी A2 कैसे होगा हमारा A2, मैंने ऑलरेडी बताया कि हम अभी A को हम लोग A1 करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, A2 जब हमारा आया तो 15 में हमने क्या ऐड किया, 15 है हमारा A, ठीक है। हमारा A जो है वो 15 है, तो 15 के प्लेस में हमने A लिखा है और D की वैल्यू क्या है, 8 है। सो 8 के प्लेस में हमने यहाँ पर D लिखा है। तो 15 प्लस 8 को ही हमने A प्लस D लिखा है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये सेकेंड टर्म है जो है 23। तो ये जो है 23, इसको ही हमने 15 प्लस 8 लिखा है, समझा ना। ओके, तो ये जो है हमारा A3 मतलब थर्ड टर्म, तो उसको हमने क्या बाइफरकेट किया है, 15 मतलब फर्स्ट किलोमीटर में फिर 8 रुपए मतलब A, 15 का है A और 16 क्या है 2 × 8, तो ये हो गया A प्लस 2 × 8 का मतलब हो गया D, तो ये होगा A प्लस 2D, ठीक है। और ये A प्लस 3 × 8 का मतलब है D, तो ये होगा A प्लस 3D। तो मैंने आपको बताया है A1 को हम लोग लिखेंगे A, A2 को हम लोग लिखेंगे A प्लस D, A3 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 3D, A4 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D और A4 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 3D। फिर से एक बार समझाती हूँ, देख लो। तो A1 जो हमारा टर्म है, A1, A2, A3 और A4, ये जो हमारे टर्म्स हैं, तो A1 को हम लोग लिखेंगे A, A2 को हम लोग लिखेंगे A प्लस D, A3 को हम लिखेंगे A प्लस 2D और A4 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 3D। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये जो 2 है इसमें से एक नंबर कम लिखना है हमें। ये जो 3 है इसमें से एक नंबर यहाँ पे हमें कम लिखना है। ये जो 4 है, ये जो 4 है उसमें से एक नंबर कम करो, ये होगा 3। तो इस तरह से ये हमारा AP जो है कंटिन्यू होगा। तो इस फॉर्म, ये जो फॉर्म है हमारा A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D, इसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP, ठीक है। ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ, ಇದರದು ಅದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ। ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಆಗಿದೆ। ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಯಾವುದು? A ಪ್ಲಸ್ D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो आइए और थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो हमारा AP में जो है ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म A2, A3 जो है थर्ड टर्म, A4 जो है फोर्थ टर्म, इस तरह से कहाँ तक कंटिन्यू होगा है? वेरी गुड, AN तक कंटिन्यू होगा, आप सब लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, A1 इसमें से एक नंबर कम मतलब A लिखते हैं, ठीक है। और A2 इसमें से एक नंबर कम, यहाँ पे मतलब A1 में से एक नंबर का मतलब यहाँ पे कोई D नहीं आएगा। A2 का मतलब है कि एक D यहाँ पे कम आएगा, सिर्फ एक आएगा, A प्लस D। 3 का मतलब है कि इसमें फर्स्ट एक टर्म में से एक टर्म ये होगा और उसमें 2D ऐड हुए होंगे, तो 3 में से एक कम हो गया 2D, 4 में से एक कम हो गया 3D। तो इस तरह से जनरल हमें याद रखने के लिए सिंपल सा है, A2 सेकेंड टर्म
मतलब डी एक ही आएगा, थर्ड टर्म होगा तो डी इसमें से एक कम आएगा, 4 है तो इसमें से डी एक कम आएगा। तो देखो 2 है, यहाँ पे एक कम, 3 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 है, यहाँ पे 3 आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे n है तो 4 है तो 4 में से कितने कट रहे हैं, -1 हो रहा है। 3 है, 3 में से यहाँ -1 हो रहा है, तो जब n होगा तो यहाँ भी n में से -1 d होगा। तो ये जो हमारा है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश अप टू a प्लस n-1 इंटू डी, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन AP, समांतर श्रेणीय सामान्य रूप। ठीक है, तो आज जो हमने किया है ये पूरा पेपर का जो है राइटिंग वर्क है, इसको भी चाहिए आप लोग इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट में ले लें और फिर इसके नोट्स बना लें। इसके आगे का जो आपका एक्सरसाइज है 1.1 फिर हम अगले हमारे वीडियो में कंटिन्यू